वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इधर से वो कर रहा था, बार उनको देखा था, यहाँ पे भी वो शुरू हो गए अब। लेकिन अभी जिया आया नहीं है कि वो उसको सेट करते हैं। इंशाल्लाह कल से हम अपना वो सेट करेंगे यहाँ से। इंशाल्लाह। ओके, सो कैरी ऑन। Bismillahirrahmanirrahim. I am Komal San, and today my topic is anterior segment problem related to dry eye and contact lenses. These are contents which will be included in this presentation. Okay, so first of all, what is tear film? Tear film is a protective film of about 7 to 9 micrometer thick, which protects the cornea and conjunctiva. It forms a smooth open surface by filling irregularities of corneal epithelium, keeps the cornea and conjunctiva moist, serve as a lubricant for lids, and transfer air to the cornea. It prevents infection, washes away the debris and irritants, and provides pathway to WBC in case of injury. The presence of the precorneal tear film was first demonstrated by Fisher in 1928, and Rowlett described it as the most superficial sixth layer of cornea. Wolff was the first to describe in detail the structure of the tear film and coined the term precorneal film. This is the structure of the tear film, which consists of the lipid layer, outermost, then the middle aqueous layer, and the inner mucin layer. First of all, we start from the bottom, the mucin layer, which is the deepest layer, 0.02 to 0.04 micrometer. It is mainly secreted by conjunctival goblet cell and crypts of Hanley and gland of Mans. Mucus layer is made up of two things. One is the epithelial cell, glycocalyx, and a layer of tear mucin, which is also contain glycoprotein. For clear corneal epithelium, हमारे पास जो क्लियर कॉर्नियल एपिथेलियम होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो उसको हाइड्रोफिलिक जो है वो ये म्यूसिन लेयर ही बनाती है. ओके, ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प hold mucin to the corneal surface, and it is formed by the corneal cells. Holding mucin to the ocular surface create a water retention as well as protection against bacterial pathogen. Protein or mucin is produced by goblet cells. It plays a vital role in the stability of preocular tear film. Okay, functions हमारे पास इसके है ये removing debris, stabilization of the tear film, preventing adhesion of debris and bacteria, spreading mucus, anchoring mucus, and protection from the ocular surface. This is an extra point. In some contact lens wears, especially of silicone hydrogel lenses, collapse mucin as well as lipids and tear proteins accumulate behind the lens and form small discrete spheres called mucin ball or mucin plug. These mucin ball cause neither discomfort nor loss of vision. The next layer is aqueous layer. It is the middle layer and the main bulk of the tear film. It is mainly secreted by lacrimal gland and accessory lacrimal gland, crus, and warfarin. It is 60% of the tear film, and aqueous solution of low viscosity containing ions of organic salt, glucose, urea, enzyme, taste-specific prealbumin, and secretory IgA. Because of bicarbonate and protein gave a buffering capacity to this layer. बफरिंग कैपेसिटी में हमारे पास ये होता है कि ये पीएच के लेवल को मेंटेन रखता है. ना उसको ज़्यादा एसिडिक करता है ना उसको ज़्यादा बेसिक की तरफ शिफ्ट करता है. इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन दिस लेयर वेरीज विद फ्लो रेट. At flow rates, the layer is hypertonic, whereas at high rates flow, it becomes the basal tear or normal lacrimation. टीयर प्रोड्यूस होती है, एक बेजल होती है और रिफ्लेक्स होती है. जो बेजल होती है वो इस एक्वस लेयर से बनती है और जो रिफ्लेक्स टीयर होती है वो हमारे पास लेक्रिमल ग्रेड से सिक्रीट होती है. इसकी जो विड्थ है वो 7 माइक्रोमीटर है. इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म लेयर. इसका एक फंक्शन है व्हीकल फॉर ऑक्सीजन टू ट्रांसफर टू द कॉर्निया, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, फ्लशिंग ऑफ substances, and antibacterial activity, lubrication, routes for leukocyte and IgA. With lipid layer, it is a lipid layer
derived veneal glands of Zeiss and glands of Mohs. Contain lipid with low quality such as wax and cholesterol esters. It forms from polar and neutral lipid phase, aqueous component of tear film and non-polar lipid phase the air. जो इसका नॉन पोलर पार्ट होता है वो एयर की साइड पे होता है, मतलब बाहर आएगी इसके साइड, और जो इसका पोलर पार्ट होता है वो इक्वस के साइड पे होता है. ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड आर आल्सो प्रेजेंट इन लॉलर अमाउंट्स. अच्छा, इसके फंक्शन जो है वो है ऑयली लेयर ऑफ टेयर फिल्म prevents the overflow of tears and retard their evaporation. It prevents migration of skin lipids onto the ocular surface. It provides a ocular media and smooth surface for refraction of light. Acts as a barrier for preventing contamination of tear film. It acts as a surfactant layer which made an effective bridge between the non-polar lipid phase and aqueous mucinous phase. It acts as a lubricant to facilitate smooth movement of. In a nutshell, हमारे पास 3 लेयर्स आ गई. एक है म्यूसिन लेयर, एक्वस लेयर एंड लिपिड लेयर. म्यूसिन लेयर्स का जो मेन फंक्शन है ये कि टीयर को एडहेस करता है सरफेस ऑफ द आई के साथ. एक्वस जो है इसको ये करता है और एक यूनिफॉर्म आउटर लेयर बनाता है. अच्छा, इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसमें वाटर जो है वो मेजर कंपोनेंट है, वो है अबाउट 98.2%. इसमें और भी डिजॉल्व साल्ट होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट्स और प्रोटीन्स. और प्रोटीन में पे हमारे पास करते हैं जो कि इसमें 15% ऑफ प्रोटीन बनाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ IgG, albumin, transferrin, alpha-1 antitrypsin, alpha-1 antitrypsin, beta-2 microglobulins, and type 2 is synthesized by Thayer gland, also known as rapid migrating proteins, lysozyme and IgA. और इसमें हमारे पास 6 स्पेसिफिक प्रोटीन भी होते हैं जिसे हम प्री-एल्बुमिन कहते हैं. IgA इसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली होता है. ये प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल्स इन कंजक्टिवा और ये हमारे पास वायरल और बैक्टीरियल एंटीजेंस के खिलाफ डिफेंस देता है. इसमें IgM एंड IgE भी होते हैं. लाइसोजाइम भी होता है इसमें, जो है कि हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम है. इसका एक नेट पॉजिटिव चार्ज देता है और ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है SNR सेल्स ऑफ लैक्रिमन गेन से, और ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है. अच्छा, टेयर फिल्म और कॉन्टैक्ट लेंस का क्या ताल्लुक? टेयर कॉन्टैक्ट लेंस इज कवर बोथ the lipids, proteins, salts, and other enzymes present in tear may adhere on the lens surface and can deposit on the contact lenses. This cause an uneven coverage of tear film on the cornea. तो हमारे पास लेंस जो है या तो ये अमाउंट ऑफ रिड्यूस करेगा या रिमूव करेगा स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का इन टेयर फिल्म पे, या ये जो है लेंस कैन अकोमोडेट द टेयर फिल्म by assimilating the influx of new components or increasing the level of existing component. या तो इसकी जो टेयर फिल्म का जो वो है इसको या तो इम्प्रूव करेगा, इसमें और चीज़ें इंटर होने देगा, या इससे ऑलरेडी इसके जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसको इंक्रीज करेगा. टेयर फिल्म जो है उसकी डायनेमिक्स हमारे पास इसमें है सिक्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी, टेयर फ्लो एंड ड्रेनेज. सिक्रेशन ये है आर कंटिन्यूसली सिक्रेटेड थ्रू आउट द डे. इसमें हमारे पास 2 ग्लैंड्स काम करती है, मेनली एक्सेसरी लैक्रिमन ग्लैंड जो कि बेसल सिक्रेशन करती है, और जो कि रिफ्लेक्स सिक्रेशन करती है. रिफ्लेक्स सिक्रेशन हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू सेंसेशन फ्रॉम द कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, या जो है एक्शन ऑफ पार्टिकल्स रिफ्लेक्स से भी रिफ्लेक्स सिक्रेशन हो सकते हैं. अच्छा, और फिर जो रिफ्लेक्स सिक्रेशन है इसका एफरेंट पाथवे है वो फॉर्म बाय फिफ्थ नर्व एंड इफरेंट बाय पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड. टेयर टर्नओवर रेट जो है वो हमारे पास 5 to 7 मिनट है. टेयर टर्नओवर रेट ये है कि जब % डिक्रीज होता है फ्लोरेसीन कंसंट्रेशन में इन द टेयर्स पर मिनट में. जब हम टेयर्स में आई में फ्लोरेसीन डाल देते हैं जो उसमें % डिक्रीज आता है फ्लोरेसीन की कंसंट्रेशन में, इसको टेयर टर्नओवर रेट कहते हैं. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 2 फिनोमिना से होती है. एक को हम बिटिंग कहते हैं जो कि हॉली एंड लैम्स ने प्रपोज किया था. इसके ये कंजक्टिवल म्यूकस दैट मेक्स कॉर्निया हाइड्रोफिलिक.
जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया कि जो हमारे पास म्यूसिन और जो गॉबलेट सेल्स से आते हैं वो जो है हमारे पास जो कॉर्नियल एपिथेलियम का सरफेस होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, उसको हाइड्रोफिलिक जो है ये कंजक्टाइवल म्यूकस जो के म्यूसिन जो है उसको बनाते हैं। तो एक ये फिनोमेना। फिर इंटरेक्शन ऑफ आईलिड्स एंड टीयर्स इन कॉर्नियल विटिंग, और जब ब्लिंक करते हैं तो उसके साथ जो आईलिड और टीयर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो फिनोमेना है। हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं वो ये है कि लिड सरफेसिंग कॉर्निया विद थिन लेयर ऑफ म्यूकस। पहले हमारे पास थिन लेयर ऑफ म्यूकस बनती है, ऑन दिस द एक्वस देन स्प्रेड्स स्पॉन्टेनियसली, फिर उसके ऊपर एक्वस आता है और फिर देन द सुपरफिशियल लिपिड लेयर सरफेस ओवर रिटार्डिंग इट्स इवेपोरेशन एंड एनहांसिंग स्टेबिलिटी, और आखिर में हमारे पास लिपिड लेयर उसके ऊपर आ जाती है ताकि इसके इवेपोरेशन को कम करे और उसको स्टेबल रखे टेयर को। हमारे पास जब ब्लिंक होती है तो उसमें ये मूवमेंट होती है, as the upper lid moves downward the superficial layer is compressed। जब हमारे पास स्लिट बंद होती है ब्लिंक के दौरान तो जो सुपरफिशियल लेयर जो हमारे पास लिपिड लेयर वो कंप्रेस हो जाती है। द होल लिपिड लेयर टुगेदर विद एसोसिएटेड बाइपोलिमर इज कंप्रेस बिटवीन द एजेस, और जो ये लिपिड लेयर है ये एजेस के दरमियान कंप्रेस हो जाती है। दिस लिपिड कंटेमिनेटेड म्यूकस इज रोल अप इन अ थ्रेड लाइक शेप एंड ड्रैग इनटू लोअर फोर्निक्स, और ये जो हमारे पास लिपिड है ये जो है थ्रेड लाइक शेप में लोअर फोनिक्स की तरफ चले जाते हैं। ऑन ओपनिंग द आई एट फर्स्ट द लिपिड स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ मोनोलेयर अगेंस्ट द अपर आईलिड। जब आई ओपन हो जाती है आफ्टर ब्लिंक तो पहले सिर्फ एक लेयर बनती है लिपिड की, फिर ये जो लिपिड है ये अपने पास इक्वल स्टेयर भी ले आता है और फिर इसकी लेयर्स थिक हो जाती है। ये इसका डायग्राम ओके। फिर हमारे पास है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स ज़रूरी है, एक है कंपोजिशनल फैक्टर, दूसरा है हाइड्रोडायनामिक फैक्टर्स। कंपोजिशनल फैक्टर में हमारे पास जो टेयर जिसकी वजह से तीन हमने बताया बात वो की कि उससे बनता है, तो अगर ये इन तीनों फैक्टर्स में कोई इशू होगा तो फिर टेयर हमारे पास स्टेबल नहीं बनेगा। जैसे हमारे पास ऑकुलर सरफेस एपिथेलियम में म्यूसिन की हमने बात की, म्यूसिन लेयर जो बनाते हैं मेब्यूनियम ग्लैंड्स, लिपिड्स, लैक्रिमल ग्लैंड और ये जो हमारे पास इक्वस बनाते हैं। अच्छा, हाइड्रोनोमिक फैक्टर में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक है आईलिड ब्लिंकिंग, दूसरी है आईलिड क्लोजर। आईलिड ब्लिंकिंग इज नेसेसरी क्योंकि ये टेयर को स्प्रेड करता है, और जो हमारे पास क्लोजर है वो भी इसलिए ताकि ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो, एवाइड एक्सपोजर। The compositional factors are responsible for producing three major tear components, that is the liquid fluid, lipids and mucin, while the hydronomic factors generate effective tear clearance and spread to cover the ocular surface and intermittent closure to avoid unwanted exposure and desiccation. Okay, हमारे पास tear flow आता है। tear flow is aided by three things, that is the capillary action, gravity and blinking। और टेयर फ्लो जो है लिड क्लोजर के साथ होता है, जैसे कंट्रक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलस ओकुलाई मसल्स कॉजेज लिड क्लोजर विद अ सिजर लाइक एक्शन टुवर्ड्स द नोज। हमारी जो ये आंख बंद होती है वो सिजर लाइक एक्शन की तरह बंद होती है, लाइक या जिप एक्शन की तरह। लिड क्लोजर प्रोपल्स द टेयर टुवर्ड्स द मीडियन कैंथस, और जब हमारे पास लिड बंद होती है जो टेयर होते हैं वो मीडियन कैंथस की तरफ चला जाता है, इस डायग्राम में। ओके, इसके बाद ड्रेनेज आती है। टेयर इज ड्रेन फ्रॉम द लेकस लैक्रिमलस टू द नेसोलैक्रिमल डक्ट बाय एक्टिव लैक्रिमल पंप mechanism and it operates during blinking. When on closure of eyelids, contraction of pretarsal fibers of the orbicularis compress the ampulla and shorten the canal culi. This propels the tear present in the ampulla and horizontal part of the canal culi towards the lacrimal sac. फिर इसके बाद मतलब जब आई क्लोज होती है तो एक तो हमारे पास प्रीटार्सल फाइबर जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रीसेप्टल भी। तो प्रीटार्सल फाइबर जो है वो टेयर को एम्पुला से कैनाल कुली में ले आते हैं और फिर जो है इसको लैक्रिमल सेप की तरफ ले आते हैं। और जो कंट्रैक्शन ऑफ प्रीसेप्टल फाइबर्स है वो हमारे पास लैक्रिमल फेशिया को और जो लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सेक है क्लोज होती है उसको ओपन कर देते हैं। और इसके अलावा जब ये होता है तो ये एक
negative pressure produce करता है and draw the tears from the canaliculi into the nasolacrimal sac. और इसी जब ये होता है तो ये से tears को लेके आते हैं lacrimal sac की तरफ. Along with the increased tension on the lacrimal fascia, the anterior portion closes more tightly. और जब हमारे पास ये increase pressure बनता है तो इसके साथ टेंशन बढ़ता है तो ये जो inferior portion closes more tightly, preventing aspiration of air from the nose. तो ये हमारे पास aspiration of the nose को prevent करता है. अच्छा, जब eyelids open हो जाती है तो pre-typal fiber जो हमारे पास concept वो हुई थी वो relax हो जाती है और allows the canalculi to expand and reopen. It draws in the lacrimal fluid to the puncti from the lacrimal lake. ओके और जब रिलैक्सेशन ऑफ प्रीसेप्टल फाइबर्स हो जाती है तो एक्रिमल सैक जो है वो हमारे पास कोलैप्स हो जाता है और देन एक्सपेल द फ्लूइड इनटू द न्यू ओपन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट. और जब लैक्रिमल सैक कोलैप्स होता है जो फ्लूइड होता है वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में ओपन हो जाता है. दिस इज द होल प्रोसेस. टेयर फिल्म एबनॉर्मेलिटीज. हमारे पास 5 मेजर एलिमेंट है जो कि टेयर फिल्म डिस्फंक्शन करता है. नंबर फर्स्ट इज द लेपिड एबनॉर्मेलिटी, सेकंड इज इक्वस, थर्ड इज म्यूसिन, देन बेस एबनॉर्मेलिटी. एपिथेलियम में कोई मसला आ जाता है. सरफेस एबनॉर्मेलिटी, स्प्रेडिंग ऑफ द टेयर बाय द लिड्स में कोई इशू हो और कॉज ऑफ ड्राई आई प्रोड्यूस बाय एक्सपोजर. लिड प्रॉपर्ली बंद ना होते हो तो ड्राई आईज को लीड करता है. अच्छा, नंबर फर्स्ट इज हमारे मोस्ट कॉमन इज ड्राई आई. Dry eye is a generic term for a group of conditions characterized by thematically by irritated, gritty, burning eyes and clinically by alteration in the film and anterior surface of the eye. Dry eyes हमारे पास ये itching, irritated, burning eyes की symptoms होती है और इसमें हमारे पास tear film की जो interior surface है या उसके surface में कोई मसला आता है या tear film में कोई changes आ चुकी होती है. A disorder according to the definition of lump disorder of the tear film due to tear deficiency or excessive tear evaporation which causes damage to the interpalpable ocular surface and is associated with symptoms of ocular discomfort. It is also known as keratoconjunctivitis. Dry eye is a cyclical disorder. In the diagram, when ocular surface damage, it leads to poor tear stability or function and it leads to dry eye. Dry eye has many causes. The most dry eye causes divided into tear deficient and evaporative. The tear deficient हमारे पास इसमें Sjogren syndrome और non-Sjogren tear deficiency आ जाती है. Sjogren syndrome is a autoimmune disorder which characterized by dry eye and dryness of mouth. Okay, non-Sjogren tear deficiency में हमारे पास या तो lacrimal की obstruction होगी या lacrimal disease होगी और या reflex tearing होगी. और हमारे पास जो है एवोपरेटिव, इसमें या ऑयल डेफिशिएंट होगा, म्यूसिन लेयर या इसमें कोई डेफिशिएंसी होगी, लिड रिलेटेड, लिड प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो रहा, ब्लिंकिंग नहीं हो रही, या कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड और या है सर्विस चेंजेस. ओके, अनस्टेबल टेयर फिल्म इज कंसिडर्ड द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ऑल ड्राई आई सिंड्रोम. हमारे पास जितनी भी ड्राई आई सिंड्रोम है उन सब के लिए जो मेन कॉज है वो है टेयर फिल्म अनस्टेबल है. टेयर फिल्म फ्रॉम keratoconjunctivitis sicca patient have greatly reduced level of 3 major lacrimal gland proteins: tear specific prealbumin, lysozyme and lactoferrin. जो keratoconjunctivitis sicca के पेशेंट्स का लेवल चेक किया गया, इनमें से ये 3 प्रोटीन जो है कम होते हैं. Can experience watering of the eye, which is an inflammation caused by the deficiency. Lack of meibomian gland secretion can in a hydrophobic film coat leading to spill into the face. हमारे पास अगर meibomian gland secretion में मसला होगा, जो tears होंगे वो प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब उसकी ऑपरेशन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट सिंड्रोम इज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम और बोगर्ट सिंड्रोम. इस सिंड्रोम में हमारे पास ये होता है कि जब बेल्स पासी हो जाती है उसके बाद दोबारा नर्व्स की रीजनरेशन हो जाती है, तो वो रीजनरेशन गलत हो जाती है. इसमें यह होता है कि जब जो पेशेंट होता है जब वो खाना खाता है तो उसके साथ या उसकी आंखों से पानी बहता है, मतलब आंसू आते हैं. An uncommon consequence of nerve degeneration subsequent to the Bell palsy or other damage to the facial nerve, in which efferent fibers from the superior salivary nucleus become improperly connected to the nerve axon,
प्रोजेक्टिंग टू द लैक्रिमल ग्लैंड। मतलब जो सिलाइवरी ग्लैंड के इफ्रेंट फाइबर्स होते हैं वो इम्प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के साथ, causing one to shed tears during salivation while smelling food or eating. It is presumed that one would also salivate while crying due to the inverse improper connection of the lacrimal nucleus to the salivary gland. Will be less possible clinical disorder. Okay, next is mucin deficiency disease. The classical example of mucin deficiency caused by degeneration or loss of goblet cell in hypovitaminosis A. हमारे पास जो म्यूसिन डेफिशिएंसी आती है वो मेन कॉज इसी वजह से होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए इज नेसेसरी for the maturation of goblet cell. It also play an essential role in the biosynthesis of cell surface conjugates or non-wetting of the ocular surface. One of those disorder. Okay, blepharitis. Functional abnormalities in the meibomian gland are believed to play a major role in the pathogenesis of blepharitis. Blepharitis में mostly हमारे पास meibomian gland में abnormality होगी. The normal outflow of lipid secretion is obstructed, and the retained lipids aggravate the inflammation, which may ultimately lead to necrosis of the gland. इसमें हमारे पास जो lipid की secretion की normal outflow होती है वो बंद हो जाती है. Okay. और जो हमारे पास जो रिटेन लिपिड्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को लीड कर देते हैं. It is also possible that modification in the lipid composition lead to increased viscosity of the fluid, which could obstruct its secretion from the gland. और इसके अलावा लिड के कंपोजिशन में भी कोई अगर कोई मॉडिफिकेशन आ गई तो वो भी इस विस्कोसिटी ज़्यादा करती है, वो इन्फ्लेमेशन को लीड करती है. Lesion throughout the eyelid is characteristic of most, if not all, types of blepharitis. Mostly जो हमारे पास तकरीबन टाइप blepharitis है उन सब में लेजियन बन जाता है. अच्छा, meibomian gland dysfunction is a chronic diffuse abnormality of meibomian glands, commonly characterized by terminal duct obstruction or qualitative changes in the gland. या तो हमारे पास ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और या हमारे पास इसके चेंज में कोई इशू होगा. दिस में रिजल्ट इन अल्ट्रेशन ऑफ द टेयर फिल्म, जिसकी वजह से हमारे पास टेयर फिल्म में चेंजेस आ जाएगी. सिम्टम्स ऑफ आई इरिटेशन, क्लिनिकली अपरेंट इन्फ्लेमेशन एंड ओकुलर सरफेस डिजीज. ओके, meibomian ग्लैंड फंक्शन के भी अपने बहुत कॉजेज है. एक तो ये इसके लो डिलीवरी में इसके सिक्रेशन कम होगी तो हाइपोसिक्रेटिव होगा meibomian सिक्का. इसमें हमारे पास फिर दो काजेज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी तो ये है कि सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है, सेकेंडरी किसी मेडिकेशन की वजह से. और ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारे पास सिकाट्रिकल एंड नॉन सिकाट्रिकल काजेज हो सकती है. सिकाट्रिकल में भी फिर प्राइमरी सेकेंडरी है. इसमें हमारे पास ट्रिकोमा, ऑकुलर फिमिगॉइड, एर्थमा एंड मल्टीफॉर्म एंड एट्रोफी. और जो हमारा नॉन सिकाट्रिकल है उसमें सेकेंडरी में सिवोरिक डर्मेटाइटिस, एक्नी रोजिका, एट्रोफी एंड सिरोसिस. और जो हमारे पास हाइपर सिक्रेटरी meibomian सिक्रेशन सिबोरा जिसके बोलते हैं उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज है. सेकेंडरी में भी सिबोरिक डर्मेटाइटिस और एक्नी रोजिका. दिस आर लीड्स टू आई इरिटेशन. हमारे पास ये सबसे पहले अल्ट्रेशन ऑफ टेयर फिल्म करती है, फिर आई इरिटेशन और फिर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं जो कि क्लिनिकली अपरेंट होता है, और ऑक्यूलर सरफेस डिजीज जो कि फिर ड्राई आई को लीड कर देता है. अच्छा, हमारे पास इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है सबसे पहले है जो ब्लिंकिंग की इनहिबिशन, मतलब ब्लिंकिंग कम करते या नहीं करते. तो इसका सबसे पहला कॉमन जो है वो कंप्यूटर वर्क है, रीडिंग के टाइम, टीवी और या प्लेइंग वीडियो गेम्स. कॉन्टैक्ट लेंस वेयर में भी ज़्यादा meibomian ग्लैंड इन्फेक्शन आते हैं. इनमें आर्टिफिशियल सरफेस आ जाती है, फ्रैक्शन, केराटिनाइजेशन हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है या जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस. एज जैसी एज बढ़ती है तो meibomian ग्लैंड जो है उसका एट्रोफी होती है, तो उसमें भी फर्क है. रेस में भी स्पेसिफिक रेस में भी ये हो सकता है और जेंटल में ये मेल में ज़्यादा कॉमन है. हार्मोनल डिस्टर्बेंस, deficiency हो, मेनोपॉज, सेक्स हार्मोन और स्टेरॉइड्स और ग्रोथ फैक्टर्स, इट आल्सो लीड टू meibomian gland death factor. मेडिकेशन में एक्यूटिन वाला जो है benign prostate hyperplasia मेडिसिन में, एंटीहिस्टामिन में और एंटी में. इसके अलावा हमारे पास सिस्टमिक और डर्मेटोलॉजिकल डिजीज होती है जैसे एक्नी रोजिका, एक्नी वल्गैरिस, एक्जिमा, सिरोसिस